Hello everyone and welcome to my video on designing the question paper. In this video, we are going to learn how to prepare the question paper that includes the MCQs, fill in the blanks, short answer questions or the long answer questions. So we are going to discuss how to prepare the quiz assignment, schedule your quiz, set the time limit for attempting the question paper, also how to import the grades in the classroom. So we can set the starting time as well as the ending time for solving the question paper by the students. It is basically the integration of the Google Classroom and the Google Forms. It means that the students will submit the responses into the Google Forms and we are going to import the grades into the classroom. Now you will prepare the question paper in the Google form. So what we can do is we can divide the question paper into different sections. For example, the section 1 is true or false, section 2 is fill in the blanks, section 3 is short answer questions, section 4 is long answer questions. Now when we will prepare the question paper, we will also set the answer key. So we can prepare the answer key for true or false, fill in the blanks, short answer questions. When you will prepare the answer key, you will also allot the marks for these questions. When the students will solve these types of questions, then the marks will be allotted automatically. No need to check it manually. But for long answer questions, we can only allot the marks for these questions and we have to check the answers manually. So now let's see how to prepare the question paper. So first of all, open the classroom for which you want to prepare the question paper. So this is my classroom. Go to classwork. Now in the classwork you have this option plus. प्लस का ये ऑप्शन होता है आपके क्लास वर्क में. दिस इज फॉर द क्रिएशन ऑफ द असाइनमेंट्स और मटेरियल. So just click on this plus icon. So you will find different options: assignment, quiz assignment, material, etc. So you will just select this quiz assignment. So click on quiz assignment. Just provide here the title. So now this is my exam. So I am giving here exam CS. Yeah, so this is the title of my assignment, exam CS. Give here the instructions for the students because this will be reflected in the stream. So I am writing here, this is online exam, so complete it timely. So we are going to set the starting and the ending time. So you need to inform the students कि आपको timely ये exam को ख़त्म करना है. यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम क्विज असाइनमेंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक ब्लैंक क्विज फॉर्म आपका आ जाता है. यू विल क्रिएट द क्वेश्चन पेपर इनटू दिस ब्लैंक क्विज फॉर्म. तो जस्ट क्लिक ऑन इट, इट विल गेट ओपन. अब ये आपका फॉर्म ओपन हो गया है. नाउ दिस इज अ ब्लैंक फॉर्म. इन दिस फॉर्म यू विल क्रिएट योर क्वेश्चन पेपर. सबसे पहले यहाँ पर आप नाम दे दीजिए. फॉर्म का आप नाम क्या दे रहे हैं? दिस विल बी सेव्ड इन योर ड्राइव. तो इसका नाम देना है. सो आई एम गिविंग हियर द नेम एग्जाम CS1. Clear? Exam CS1. This form will be saved into my Google Drive. Now after that, give here the title of your form. So I am giving here exam for IP. Clear? Now after that, give here the form description. So I am giving here, this is 40 marks test. After that, create the questions. Clear? So now this will be your first section. So I am writing here the question, what is computer? Clear? Now I want to make it the MCQ, multiple choice question. So I have selected here the option multiple choice. By default it is multiple choice, or if you want to change the different types, so you can select any of the options from here. Yeah, so I am selecting here multiple choice. So I am giving here the choice, it is electrical device. I am giving here electrical device. Second option I am giving here electronic device. You can give another option also. So I have just given two options. After that, click on this answer key.
इसका करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करने हैं और कितने पॉइंट्स आपको इसमें देने हैं कि इफ दिस आंसर इज करेक्ट देन हाउ मच पॉइंट्स यू वांट टू अलॉट। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलेक्ट किया है मार्क्स मैंने दिए हैं 1 और इसके बाद यहाँ पर करेक्ट आप आंसर सेलेक्ट करिए। सो आई एम सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर टिक आ जाता है, मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन दिस डन। तो जस्ट डन पे क्लिक किया। Now we have prepared the answer key, 1 point for this question. It is multiple choice question and after that make it compulsory. Required को आप select कर दीजिए. So make it compulsory. The student is going to attempt this question. You can prepare or you can add different questions into this section by just clicking on this add. Clear? Now I want to make another section for the long answer question. So for that create another section. So I'm clicking on this add section. तो जस्ट क्लिक ऑन दिस एड सेक्शन। सो अनदर सेक्शन गेट्स ओपन। तो देखिए यहाँ पर ये आपका पहला सेक्शन बन गया, सेक्शन 1 of 2 एंड दिस इज सेक्शन 2 of 2। सो दिस इज द नेक्स्ट section that we have created. I am writing here long answer questions. Now this part or this section you have to check manually. Clear? So now I have given here long answer question and here I am writing here instructions for the students. Read the questions carefully. नाउ जैसे इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपके पैसेज होते हैं या एसएसटी के सब्जेक्ट में आपके मैप्स होते हैं, सो उसके रिगार्डिंग आप इसमें क्वेश्चंस दे सकते हैं। यू कैन पुट द इमेज एंड लुकिंग एट द इमेज स्टूडेंट कैन आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए वी हैड गिवन द हेडिंग ऑफ दिस सेक्शन, उसके बाद यहाँ पर प्लस का आइकन है। नाउ वी नीड टू ऐड द क्वेश्चंस टू दिस सेक्शन। तो जस्ट यहाँ पर क्लिक किया। सो सेक्शन के अंदर देखिए क्वेश्चन के लिए स्पेस आ गई। तो जस्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन टाइप करना है। either you can type it or you can just copy it from your word file. So I have created this file, so I'm just copying it from my file. Now put here the question number. Suppose this is my question number 2 and after that I want to add the image for this question. बच्चे इमेज को देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। So I will add the image, selecting it from the system. So just click on this upload and browse, or you can select the file from your drive or you can also search it from the Google browser. So just browse it and select the image for this question. तो देखिए इमेज आपकी आ गई है। So this is your complete question. नाउ यू वांट टू मेक इट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, तो आपको ये मल्टीपल चॉइस यहाँ से चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए यू हैव दिस फाइल अपलोड ऑप्शन। सो जस्ट सेलेक्ट दिस फाइल अपलोड। When you will select the file upload, it will ask you the permission because all the files submitted by the students will be saved in your drive. So just click on this continue because you are permitting the students. After that you will get this options. Allow only specific file types. If you select this, then you have to select the options, the different file types. अब बच्चा डॉक्यूमेंट भी भेज सकता है, पीडीएफ भी भेज सकता है, इमेज भी भेज सकता है, इसीलिए इसे अनसिलेक्टेड रखिए बिकॉज बच्चा किसी भी फाइल फॉर्मेट में यदि भेज रहा है तो इट विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस फॉर्म। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स विल बी 1 बिकॉज एक क्वेश्चन के लिए बच्चा एक ही फाइल भेजेगा। उसके बाद मैक्सिमम फाइल साइज इज गिवन एज 10 MB। दिस इज सफिशिएंट इनफ। बट यदि आप साइज फिर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखिए अलग अलग ऑप्शन हैं, आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक ऑन दिस आंसर की। नाउ एग्जैक्ट आंसर हम यहाँ पर नहीं शो कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। बच्चा हैंड रिटन आंसर लिखेगा एंड उसे फिर अपलोड करेगा। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में यदि बच्चा अटेम्प्ट करता है तो आपको कितने मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए देने हैं, वो आपको मार्क्स अलॉट करने हैं। सो आई एम गिविंग हियर 4 मार्क्स फॉर दिस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन and then click on done. So the total marks allotted for this question paper is 5. You can see here the total marks allotted is 5. 1 mark for this my MCQ and 1 mark is for this long answer, 4 marks for this long answer question. So we have prepared the question paper. Next is you have to give the timings. So now we are going to set the end time for this
question paper. So for that you have to click on this more. You have to click on this three dots more. Just click on it. You will find here the option add-ons. Clear? So just click on this add-ons. So when you will click on this add-ons, you will find the form limiter. ठीक है, यदि फॉर्म लिमिटर यहाँ नहीं आता है तो यहाँ पर आप सर्च में आप लिख दीजिए फॉर्म लिमिटर. क्लियर? तो जैसे ही आप फॉर्म लिमिटर लिखेंगे, ये फॉर्म लिमिटर का एक आपका ऐप आ जाएगा एंड इट विल बी इंस्टॉल्ड. यू नीड टू इंस्टॉल इट so that we can set the time. It is installed on my system. So when you will install it, you will get this icon add on. So just click on this add on. जैसे ही हम add-ons पर क्लिक करते हैं, you get this option form limiter. तो देखिए add-ons पर क्लिक किया, फॉर्म लिमिटर, उसके बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है. जैसे ही हम फॉर्म लिमिटर पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेट लिमिट. तो सेट लिमिट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक स्मॉल विंडो आ रही है. यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है टाइम लिमिट टाइप. आपको यहाँ पर टाइप सेलेक्ट करना है. सो जस्ट सेलेक्ट, क्लिक ऑन दिस एरोज. यहाँ से आपको डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है. यहाँ पर देखिए डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है. डेट एंड टाइम में नाउ स्टॉप्स एक्सेप्टिंग फॉर्म रिस्पॉन्सेज व्हेन अ ड्यू डेट इज सेट ऑन. सो आप देखिए आपको किस डेट पे ये आपको बच्चों को अलॉट करना है, किस डेट पे आप टेस्ट लेना चाह रहे हैं. तो डेट आप सिलेक्ट कर लीजिए. तो डेट आई एम सिलेक्टिंग हियर 31st. टाइम आप सिलेक्ट कर लीजिए कि किस टाइम तक बच्चा ये अटेम्प्ट कर सकता है. ठीक है, तो मैं दे रही हूँ बच्चों को टाइम सपोज 2:30 तक. तो 2 यहाँ से सिलेक्ट किया, 30 हमने यहाँ से सिलेक्ट किया. ठीक है, तो हमने 2:30 यहाँ से सिलेक्ट कर दिया एंड ये टाइम आपका सेट हो गया. सो आई हैव सेट द टाइम एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस सेट बटन. क्लियर? यहाँ पर सेट बटन है, जस्ट सेट बटन पर क्लिक करिए. सो वी हैव सेट द टाइम. आफ्टर दैट you can give any message that should be reflected when the submission are closed. ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं. बाय डिफॉल्ट दिस मैसेज विल बी डिस्प्लेड. उसके बाद यहाँ पर एक बटन है सेव एंड अनेबल. क्लियर? तो सेव एंड अनेबल पर आपको क्लिक करना है. नाउ दिस settings will be applicable to this form. Now we have set the end time for this question paper. Now what we have to do is again go to your classroom in this assignment. Now you have to set the starting time. So for starting time, you have to go to this assign. Just near this assign, you have this arrow. ये arrow आप देख रहे हैं, assign के just पास में एक arrow है. Just click on this arrow and click on the schedule. तो जैसे ही हम शेड्यूल पे क्लिक करते हैं, यू हैव द ऑप्शंस फॉर डेट एंड टाइम. तो किस डेट पे आप बच्चों को देना चाह रहे हैं वो आप दे दीजिए. तो आई वांट टू गिव 31st एंड टाइम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए. तो टाइम हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर किस डेट पे बच्चा या किस टाइम पे बच्चा ये स्टार्ट करेगा. तो आई एम गिविंग हियर, आई हैव सेट द डेट एंड आई हैव सेट द टाइम एंड जस्ट क्लिक ऑन द शेड्यूल. Now it is scheduled for 1:15 a.m. Clear? On the specific date that you have given. Now when you see the stream, it is not visible on your stream and it will not be visible to the students. When you have set the time, at that particular time, it will be visible to the students. Now let's see how it will be visible to the students. चलिए अब देखते हैं कि बच्चों को ये किस तरह से दिखेगा. तो ये बच्चे की आईडी है, ये बच्चे का क्लासरूम है. तो देखिए यहाँ पर आ गया है CS एग्जाम असाइन. तो ये बच्चे की आईडी से हमने ओपन किया है. तो बच्चा इसे ओपन करेगा और बच्चे को ये मैसेज मिल रहा है नाउ द क्वेश्चन पेपर इज रेडी. बच्चा ओपन करेगा, सेलेक्ट द क्रोम. नाउ दिस पेपर इज विजिबल टू स्टूडेंट्स. तो देखिए हमने एक नाम दिया था, नेम ऑफ द फॉर्म इज एग्जाम फॉर IP. This is the message that I have displayed. This is 40 marks test. This is the ID of the student. So inform the students that they will use their G Suite IDs. Now this is the first question. बच्चा इसे आंसर करेगा. This question is for 1 marks. It is visible here. यदि बच्चा इसे सही करता है तो उसे 1 marks मिल जाएगा. Now यहाँ पर मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है, आप मल्टीपल क्वेश्चंस दे सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं. नाउ देखिए दिस इज द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सेक्शन. इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे को क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन के साथ ये मेरा डायग्राम भी दिख रहा है और यहाँ ऑप्शन आ रहा है ऐड फाइल का. ठीक है, तो बच्चा इसमें ऐड फाइल पर क्लिक करेगा.
उसके बाद ऑप्शंस देखिए यहाँ पर अपलोड का आ रहा है और मोर का। जैसे ही मोर पे हम क्लिक करते हैं तो बच्चा ड्राइव से भी सिलेक्ट कर सकता है या प्रीवियसली सिलेक्टेड से भी कर सकता है। अब बच्चा फोटो क्लिक करेगा और उसके बाद इसे सिलेक्ट करेगा। तो देखिए बच्चा ऐड फाइल पर क्लिक करेगा। जैसे ही ऐड फाइल पे क्लिक करता है तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस। तो डिवाइस से सिलेक्ट करते हैं। इसमें देखिए बच्चे के लिए ऑप्शन आ रहा है कि बच्चा यहाँ से इमेज खींच के भी भेज सकता है। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर मोबाइल से अपनी फ़ोटो खींच लेगा। कैमरा सेलेक्ट किया, बच्चा इसमें आंसर सेलेक्ट कर लेगा। ये बच्चे ने आंसर सेलेक्ट कर लिया है और इसे अपलोड करेंगे। तो देखिए ये इमेज यहाँ से सिलेक्ट हो गई है। बच्चा इसे अपलोड करेगा। तो नाउ दिस फाइल इज अटैच्ड। नाउ यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सेंड मी द कॉपी ऑफ माई रिस्पॉन्सेज। तो यदि हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो जो भी आंसर्स बच्चे ने दिए हैं उसकी एक कॉपी बच्चे के भी पास आ जाएगी। तो जस्ट सिलेक्टेड। उसके बाद सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। मीन्स बच्चा इस पर सबमिट पर क्लिक करेगा तो दिस फॉर्म विल बी सबमिटेड। तो ये बच्चों ने पेपर सॉल्व कर दिया है, सबमिट कर दिया है। नाउ यू कैन चेक इट। जैसे ही बच्चा इसमें व्यू स्कोर करेगा तो देखिए इसमें क्या आंसर आ रहा है आपका। द पॉइंट्स आर, बच्चे ने आंसर सेलेक्ट किया है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये इसका गलत है इसलिए ज़ीरो आ गया है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ज़ीरो आया है बिकॉज यहाँ पर इसने जो क्वेश्चन का आंसर हमें चेक करना है दैट इज मैन्युअली, ये ऑटोमेटिक चेक किया हुआ है, इसमें ज़ीरो आ गया। तो टोटल बच्चे के मार्क्स आए हैं इसमें ज़ीरो। नाउ लेट्स चेक द टीचर्स आईडी। नाउ गो टू द टीचर्स अकाउंट। ये टीचर्स अकाउंट में हम आ गए हैं। स्ट्रीम में देखिए आप, वन स्टूडेंट हैज़ अटेम्प्ट। ठीक है, एक बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। अब इसे हमें इस फॉर्म को चेक करना है। तो चेक करने के लिए अगेन यू हैव टू गो टू दिस फॉर्म्स। नाउ देयर आर टू रिस्पॉन्सेस, यू कैन सी दो रिस्पॉन्सेस अभी आ गए हैं। तो दो रिस्पॉन्सेस हमें चेक करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव टू रिस्पॉन्सेस। ठीक, तो यहाँ पर दो रिस्पॉन्सेस हमारे आ गए हैं। वी विल चेक द इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने गए इंडिविजुअल चेक कर रहे हैं। वन इज ध्रुव एंड अनदर इज दिस आईडी। ठीक है, तो हम ध्रुव का चेक कर लेते हैं। तो ध्रुव का हमने चेक किया, क्लियर। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं व्हाट यू कैन से द इंडिविजुअल स्कोर ऑब्टेन बाय ध्रुव। तो ध्रुव ने क्या अटेम्प्ट किया है, देखिए ही गॉट 1 ऑफ 5 पॉइंट्स। तो इसमें देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन सही है तो इसे 1 मार्क्स मिला है। एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 0 मिला है बिकॉज इट इज नॉट ऑटोमेटिकली असाइंड, वी हैव टू चेक इट। तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन में फाइल अटैच नहीं की है। नाउ दो रिस्पॉन्सेस आ गए हैं, एक ध्रुव का आया है और एक रिस्पॉन्स ये आया है। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो इस रिस्पॉन्स को इंडिविजुअली हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देखिए व्हाट इज द कंप्यूटर, इसमें 0 आया है बिकॉज दिस इज द रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर आपका इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए यहाँ पर 0 आए हैं। अदरवाइज यदि ये सही होता तो इसमें ऑटोमेटिक आपके मार्क्स आ जाते हैं बिकॉज दिस इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपका है, इसमें 0 आ रहे हैं, क्लियर। अब इसमें फाइल अटैच्ड है तो आपको ये मैन्युअली चेक करना है, यहाँ पर मार्क्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो आप इसे क्लिक करेंगे। नाउ टीचर ये किस तरह से चेक करेगा ये हमें देखना है। नाउ दिस इज द आंसर सेंट बाय द स्टूडेंट। नाउ इसे यदि देखकर आपको समझ में आ रहा है बच्चों को कितने मार्क्स देने हैं तो आप जस्ट इसे देखकर यहाँ से मार्क्स अलॉट कर सकते हैं। और अदरवाइज आप इसे चेक कर सकते हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं विद द डॉक हब। तो जस्ट इसे आपने ओपन किया, ओपन विथ डॉक हब करते हैं। जैसे ही हमने इसे ओपन किया, नाउ यू कैन डू द करेक्शंस, आप टिक मार्क कर सकते हैं। तो ये फाइल बच्चे की ओपन हो गई है। अब इसे हमें करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए वी हैव दिस फ्री हैंड टूल, इसे हमने चेक करते हैं। सो वी हैव करेक्टेड दिस। सपोज इसमें कुछ मिस्टेक है तो आप उसे मार्क भी कर सकते हैं, क्लियर। आपको कुछ करेक्शन करना है वो भी आप कर सकते हैं। सो इन दिस वे यू कैन करेक्ट इट। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन है डाउनलोड एक्सपोर्ट, क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको डाउनलोड स्लैश
export. So just click on it. जैसे ही हम यहाँ पर ये सिलेक्ट करते हैं, हमने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है, जस्ट ये डाउन एरो वाला डाउनलोड का ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया है, डाउनलोड एक्सपोर्ट। तो जैसे ही हम ये सिलेक्ट करते हैं, वी हैव दिस विंडो। इसमें देखिए यहाँ पर आ रहा है क्लासरूम। तो वी वांट टू सेंड दिस फाइल टू द क्लासरूम। जिस बच्चे की मिस्टेक की है बच्चे ने, हम उस बच्चे को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपकी मिस्टेक क्या हुई है। तो जस्ट क्लिक ऑन क्लासरूम। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्रिएट शेयर लिंक का ऑप्शन आ रहा है, जस्ट इसे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है अपलोड टू गूगल क्लासरूम, जस्ट सेलेक्ट इट। इसके बाद आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, कौन सी क्लास में आप ये भेजना चाह रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट जो आपने करेक्ट किया है। सो 12C। उसके बाद क्रिएट मटेरियल एंड गो। तो देखिए ये आ गया है। आप जिसे भी आप मैसेज करना चाह रहे हैं उसे मैसेज कर दीजिए। सपोज दिस इज करेक्शन वर्क, तो मैंने लिख दिया दिस इज करेक्शन वर्क। क्लियर। उसके बाद जिस बच्चे को आप भेजना चाह रहे हैं उस बच्चे के लिए आप मैसेज भेज दीजिए। सो जस्ट सिलेक्टिंग द स्टूडेंट फ्रॉम हियर। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ठीक है, हमने यहाँ से स्टूडेंट सिलेक्ट किया एंड दिस विल बी पास टू दिस स्टूडेंट। एक ही बच्चे को ये डाटा जाएगा। सो जो भी मैंने फाइल ये अभी करेक्ट की है, इस बच्चे के पास ये फाइल चली जाएगी। जस्ट क्लिक ऑन पोस्ट। क्लियर। सो बच्चा इससे देख भी सकता है। नाउ दिस फाइल हैज बीन सेंट टू दिस चाइल्ड। तो ये आपका करेक्शन वर्क कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पर मैन्युअली मार्क्स दीजिए, कितने मार्क्स आप देना चाहते हैं। सपोज मैं 3 मार्क्स देना चाहती हूँ आउट ऑफ 4। तो ये मार्क्स हो गए हैं मेरे 3/4 इस क्वेश्चन में, और पहले क्वेश्चन में 0 मार्क्स थे उसके। जस्ट सेव करिए इसे। अब देखिए टोटल मार्क्स इस बच्चे के हो गए हैं 3 ऑफ 5 पॉइंट्स। क्लियर। ये मार्क्स आपके आ गए। हमने क्वेश्चन पेपर चेक कर दिए हैं बच्चों के। अब फिर से हम आते हैं अपनी क्लासरूम में। क्लासरूम में आप चलिए अपने क्लास वर्क में। क्लास वर्क में आपकी एक्टिविटी थी CS एग्जाम। CS एग्जाम में हम चलते हैं। तो आप देखिए जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, हम सबसे पहले कहाँ चले गए थे, सबसे पहले हम अपनी क्लासरूम में आते हैं, क्लास वर्क में आते हैं। जो हमारा असाइनमेंट था हमने उसे क्लिक किया। जस्ट इसे क्लिक करते ही हम इस विंडो पे आ गए, स्टूडेंट वर्क में आ गए हैं। जैसे ही हम स्टूडेंट वर्क में आते हैं तो आप देखिए एक बच्चे ने अटेम्प्ट किया है और यहाँ पर ग्रेड इंपोर्ट्स आ रहा है। ठीक है। सो ग्रेड इंपोर्ट्स पे जस्ट इंपोर्ट ग्रेड्स पर आप क्लिक करेंगे एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस इंपोर्ट। So now grades will be automatically imported. तो देखिए it is 1/5। इस बच्चे के मार्क्स आए हैं 1/5। क्लियर। तो इस बच्चे के मार्क्स आपके इंपोर्ट हो गए हैं एंड आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू इज, जिस बच्चे का हमने असाइनमेंट चेक किया था उस बच्चे का मार्क्स हमारे 3 आए थे। नाउ दिस इज अ डिफरेंट स्टूडेंट, इस बच्चे ने भी अटेम्प्ट किया है, सो इसके मार्क्स आ गए। So now this will be reflected automatically into this grade sheet। आपकी जो ग्रेड शीट है उसमें ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी ये ग्रेड शीट है, इस ग्रेड शीट में ये मार्क्स बच्चे के रिफ्लेक्ट हो गए हैं। So in this way you can create the assignments, you can create the question paper in the Google form and the students can easily attempt it. You can schedule it. Hope it is clear to you all. Thank you and have a nice day.